इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Welcome to Why Prayers Matter. We have been learning how to pray. आपका स्वागत है। प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है हमें, और हम लोग सीख रहे हैं और भी अच्छे से प्रेयर करना, because we all want our prayers to be effective. हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर मिले, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए. I mean, we want that changes should come. Good changes should come in people's lives. So today we are going to look at, आज हम क्या सीखेंगे? Today we are going to look at कि परमेश्वर कितने दयालु हैं, वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका अपने ढंग से जवाब देते हैं. Today we are going to learn how God hears our prayers and he answers them in his own way. Our way is maybe full of irritation and anger and frustration, but God comes forward and still answers in his way. So let's hear this message today. Today I want all of us to open our Bibles to Exodus chapter 16. I know हम लोग पिछले 2-3 हफ्तों से we have been parked in Exodus chapter 16. पिछले 2-3 हफ्तों से हम Exodus 16 में ही हैं. But today let's look at what God has to share with us. Open it up. So I'll read it in English and in Hindi quickly. They set out for Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had departed from the land of Egypt. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, "Would that we have died in the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full, for you have brought us into the wilderness to kill this whole assembly with hunger." Then the Lord said to Moses, "Behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. On the sixth day, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather daily." So Moses and Aaron said to all the people, "At evening you shall know that it is the Lord who brought you out of Egypt. And in the morning you shall see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against the Lord. What are we that you grumble against us?" And Moses said, "When the Lord gives you in the evening meat to eat, and in the morning bread to the full, because the Lord has heard your grumbling, that you grumble against him, that we are what we are. Your grumbling is not against us, but against the Lord." Then Moses said to Aaron, "Say to the whole congregation of the people of Israel, come near before the Lord, for he has heard your grumbling." And as soon as Aaron spoke to the whole congregation of the people of Israel, they looked towards the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. And the Lord said to Moses, "I have heard the grumbling of the people of Sinai. Say to them at twilight, you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. Then you shall know that I am the Lord your God." अब मैं इसका हिंदी में ये लास्ट वर्स पढ़ूंगी, 11वीं वर्स. तब यहोवा ने मूसा से कहा, "इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना. उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं." Amen. What a wonderful statement. So God ने डिजायर किया कि वो इन लोगों को स्वर्ग से रेन की तरह मन्ना देंगे. मन्ना, a heavenly food. So when I was researching what is manna, मैं जानना चाहती थी कि मन्ना क्या है. तो वहां लिखा था एक बीज जो कि कोरिएंडर सीड यानी एक धनिया के बीज जैसा, लेकिन उससे भी छोटा, जैसे कि तिल का बीज होता है, और वो सूखा होता था, बेक्ड नहीं होता था, और उसको ये लोग अलग अलग ढंग से पकाते थे और उसे खाते थे, और ये स्वर्ग से गिरता था, और इसका स्वाद मिठास में होता था. इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि कुछ लेजेंड्स हैं जो कि जूस की हैं, वो लोग कहते हैं कि ये
वो टेस्ट देता था मुंह में जो टेस्ट कोई चाहता था। अगर किसी बच्चे को खाना है तो उसके मुंह में दूध का स्वाद आएगा, किसी बुजुर्ग को खाना है तो दलिए का स्वाद आएगा, किसी जवान को खाना है तो और कोई टेस्ट आएगा। तो जैसा जैसा वो सोचते थे, ये एक लेजेंड है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि प्रार्थना कितनी जरूरी है। अगर ये लोग उसी बात को अच्छे से प्रेयर करके प्रार्थना करते तो परमेश्वर उनको और भी खुशी से देते। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ खुदा के लोगों के विरोध में बातचीत करी, पर खुदा तक के विरोध में और उनके विरोध में बुड़बुड़ाए कुड़कुड़ाए, और गॉड ने इसको नोट करा। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना करुणामय है, उन्होंने इनको माफ करा और उन्होंने अपने मन में कहा कोई बात नहीं, मैंने अब्राहम के साथ एक प्रॉमिस किया है और मैं इन पे अनुग्रह करूंगा और उन्हें तब भी खाने को दूंगा। सो परमेश्वर ने बार बार अपने उस प्रॉमिस को जो उन्होंने अब्राहम से किया था उस पे नजर रखी। कई दफा आप और मैं कुड़कुड़ाते बुड़वाते, मेनी टाइम्स यू एंड आई are grumbling, we are upset, we are saying odd things and bad things against God and the people of God, and it is not a good thing to do that. It is dangerous. Still, however, God was merciful, and what he did was he forgave them. Sometimes when we are grumbling, God will forgive us. परमेश्वर कई दफा जब हम ग्रम्बल करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रभु हमारी सिचुएशन को जानते हैं। ये एक ऐसी जनरेशन है, ये एक ऐसी पीढ़ी है जो दास मेंटालिटी की, उनके दिमाग में उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको तो सिर्फ हार्ड लेबर करना आता है। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को इग्नोर किया। क्या कई दफा जब लोग हमारे विरोध में कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, कंप्लेन करते हैं, हम उनको माफ कर देते हैं या उनके पीछे पड़ जाते हैं? कई दफा जो लोग बहुत मुश्किल में है, उनको कुछ आता ही नहीं है सिवाय दुख होने के, ग्रम्बल करने के। कभी कभी हमें उन पे दया करनी चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक ग्रम्बल करता है, लगातार ग्रम्बल करता है, उसके लिए उनके ऊपर परमेश्वर का कठोर हाथ आता है। तो हमें कुछ हद तक लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसा मत करो और उनको मदद करनी चाहिए। हो सकता है गॉड ने हो सकता है सोचा हो कि इन लोगों को जब मैं खाना दूंगा तो ये शांत हो जाएंगे और आगे चल के ऐसा मेरे साथ बर्ताव नहीं करेंगे। और जब हम लोग चैप्टर 17 में देखते हैं कि जब गॉड ने इनको खाना दे दिया, ये लोग खा रहे हैं लगातार, उसके बाद ये एक जगह पहुंचते हैं रेफिडिम, और रेफिडिम में पहुंच करके अब इन्हें बहुत जोरों से प्यास लगती है और ये तड़प उठते हैं और फिर से कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। These people reach Rephidim and again they start to complain and grumble and say odd things to God and his people. And there they say that in verse 2 that the people quarreled with Moses, मतलब लड़ पड़े, give us water to drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? और मोसेस ने कहा, मुझसे क्यों लड़ते हो? गॉड को क्यों परीक्षा में डालते हो? But the people thirsted there for water, and the people grumbled against Moses and said, why did you bring us to Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? क्या तू हमें यहाँ पे मारने के लिए लाए? All the time they lose their faith. Are you that kind of person? बार बार ये लोग अपना विश्वास खो देते हैं। क्या हम भी ऐसे लोग हैं? हम चमत्कार देख रहे हैं, रोज चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम जब आती है, हम अपने सारे बिलीफ को गॉड में हटा देते हैं और हम कहते हैं, फिर से कंप्लेन करने लगते हैं, फिर से ग्रम्बल करने लगते हैं और गॉड को क्वेश्चन करते हैं, उनके लोगों को क्वेश्चन करते हैं। आई नो सो मेनी पीपल, देयर इज वन पर्सन हु इज मैसेजिंग मी कंटिन्यूअली, गॉड ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, गॉड ऐसे है, गॉड वैसे। एंड आई हैव रिटन टू हर, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं, अगर आप मिलोगी मुझसे तो आप मेरा मन बदल दोगी। मीन्स शी वॉन्ट्स टू कंप्लेन, वो सिर्फ गॉड को कंप्लेन करना चाहती हैं, वो कुछ और नहीं देखना चाहती। सो ऑफ कोर्स कोविड के समय है, हम किसी से ऐसे नहीं मिल रहे। इनफैक्ट आई एम नॉट मीटिंग एनीबडी राइट नाउ, बट दिस वॉज एन इमरजेंसी सिचुएशन कि कहीं वो आत्महत्या ना कर लें। सो मेरे माइंड में ये था, बट हमें गॉड को मौका देना है, हमें थोड़ा सा पॉज करना है। yesterday somebody was complaining, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने कहा अब भी से ऐसे कह रहे हो, और थोड़ी देर में वो काम हो गया। so that complaint was useless, उस कंप्लेन की जरूरत ही नहीं थी। और वहां पर लिखा भी है that मोसेस ने फिर से क्राई आउट किया। वर्स 4 में लिखा, 17 चैप्टर वर्स 4 में, मोसेस cried to the Lord, what should I do to these people? और कई दफा मैं एज अ वुमन ऑफ गॉड जब मैं प्रार्थना करती, मैं कहती, गॉड मैं इन लोगों को क्या समझाऊं, मैं इनको क्या कहूं? एंड हियर यहाँ पर गॉड ने मोसेस को कहा, अपनी छड़ी ले और तू उस पत्थर पे जा। गॉड टोल्ड मोसेस, टेक द staff which you had used
टू पार्ट द नाइल, जिससे तूने नाइल नदी को छुआ था वही वाली लकड़ी ले और जा उसको इस फला फला पत्थर पे मार, गो एंड स्ट्राइक इट ऑन दिस रॉक एंड वाटर विल कम। एंड मोसेस डिड दैट। उन्होंने सिर्फ गॉड की ओबे करी, उन्होंने लोगों को कुछ नहीं सुना। ही रैन, ही डिड दैट। और जब उन्होंने रॉक को स्ट्राइक किया, वहां से पानी आना शुरू हो गया। अगेन गॉड ignored their complaint, but God complaining को ignore नहीं करते हैं। पर यहाँ पर उन्हें पता था ये लोग बिल्कुल, इनमें कोई फेथ नहीं है, दे आर टोटली स्लेव मेंटालिटी पीपल। चाहे इनके लिए कुछ भी चमत्कार कर दो, इनको नहीं समझ में आता है, बट इनको पानी चाहिए। गॉड ने ऑलरेडी उनके लिए प्रोविजन रखा था रॉक में। मैं वर्स 6 पढ़ने जा रही हूँ। Behold, I will stand before you here on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called the place Massa and Mariah because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord, is the Lord amongst us? पानी आया, जैसे गॉड ने कहा था वैसे मोसेस ने करा, और लोगों ने पानी पिया। आई एम श्योर, यहाँ पे मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ, बट उसने उस जगह का नाम रखा मासा और मरेबा, क्योंकि लोगों ने झगड़ा किया और परमेश्वर को टेस्ट किया। सो क्या आप और मैं गॉड को टेस्ट करते हैं? उससे हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आएगा। ये कुछ और ही सर्कमस्टांसेस थे जब खुदा ने अपना जवाब दिया था, खुदा ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना था। कंप्लेनिंग और गॉड को परीक्षा में डालने से प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहते कि आपकी प्रार्थनाओं का इफेक्टिव जवाब आए, आप गॉड को टेस्ट मत करिए। अब मैं आपके सामने गॉड का जवाब, जो प्रार्थना का जवाब था, जो कंप्लेनिंग का जवाब था, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आपको याद है, मैंने आपको बताया था इजरायली, और जैसे बाइबल में लिखा है कि इजिप्ट में ये लोग खाना खाते थे और उसको याद कर रहे हैं, कितना अच्छा खाना खाते थे हम। वो खाना उनको संतुष्टि नहीं देता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया। हम इन दोनों में कुछ फर्क देखेंगे। सबसे पहले, ये खाना इनको आजादी में मिला। ये लोग शरीर से आजाद हो गए। ये लोग, गॉड ने इनको इजिप्ट से निकाल लिया, लेकिन ये अपने दिमाग में अभी भी आजाद नहीं है। लेकिन जब ये रोटी और सब्जी अपने इजिप्ट में खाते थे, तब ये दास थे। इनका टाइटल था दास। अब इनका टाइटल है खुदा के बेटे और बेटियां, इज़राइल, जिनको खुदा छुड़ा लाया, और ये फ्री लोग हैं। बहुत बड़ी बात होती थी पुराने जमाने में स्लेव होना और फ्री होना। ये जो इनको खाना मिला, ये परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद मिला। अब बैड प्रार्थना, क्योंकि ये लोग ग्रम्बल कर रहे थे। और जब पहले खाना मिलता था, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, रोजी रोटी कमानी पड़ती थी, फिर अपनी सब्जी को उगाना पड़ता था, फिर खाना पड़ता था। तो ये उनकी मेहनत का काम नहीं था, ये खुदा का गिफ्ट था जो उनको बाय ग्रेस मिला था। हम देखते हैं कि ये खाना परमेश्वर के माइंड में पहले से था। उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने दिया, लेकिन परमेश्वर के माइंड में पहले से था। लेकिन जब वो यहाँ पर खाते थे, उनको रुपया खर्चा करना पड़ता होगा या अपनी मेहनत से सब कुछ उगाना पड़ता होगा। दिस वॉज इन द माइंड ऑफ गॉड। एंड इजिप्ट लोगों के क्या माइंड में था? हमें तो इनको देना ही नहीं है, इनको कम से कम खाना दो ताकि ये तरसते रहें, क्योंकि वो क्रूर लोग थे। फिर से हम देखते हैं कि हमने तो सुना है कि स्वर्ग से बारिश गिरती है, आसमान से बारिश गिरती है, और इनका खाना आसमान से उतर के आ रहा था। लेकिन इनको जब मेहनत करके रोटी खानी पड़ती, when they had to eat and they had to labor, the labor was from the hard ground because God had cursed the ground in Genesis chapter 3। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में जमीन को श्रापित किया था, और यहाँ पर परमेश्वर सुपर नेचुरल ढंग से अपने आप स्वर्ग से मन्ना बरसा रहे हैं। लेकिन इजिप्ट में इनको कड़ी मेहनत करके खाना उगाना पड़ता था। हम लोग देखेंगे 18वीं वर्स, वहां पर लिखा है, जब उन्होंने उसको उमर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह पाया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। तो यहाँ पर उनको कभी भी कमी नहीं हुई। इट वॉज ऑलवेज इनफ, नेवर मोर और नेवर लेस। परमेश्वर ऐसे ही देते हैं। जब परमेश्वर हमें कुछ देते हैं, वो इतना ज्यादा अच्छे से देते हैं नाप के, कि वो थोड़ा सा बचता, हल्का सा बचता है, इट्स मोर, और हम उसको दूसरों को दे पाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट हियर इज दैट दे वर सैटिस्फाइड। जो मैं कहना चाहती हूँ, वो लोग सैटिस्फाइड थे और रेस्ट में थे। और फिर हम देखते हैं टेस्ट, इसका टेस्ट स्वीट था। मैं किसी का वीडियो देख रही थी कल, उन्होंने कहा जब हम लोग बहुत दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, हमारे बॉडी में केमिकल्स जनरेट होते हैं, और वो हमें
कड़वाहट में ले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वाला खाना जब ये गॉड के साथ खा रहे थे, जब फ्रीडम में है, तो उनको मिठास में था, सचमुच में मीठा था और मिठास देता था। लेकिन जब वो अपने टेस्टी खाने को भी दास जिंदगी में, जहां वो बहुत ज्यादा दुखी थे, खाते थे, वो शायद टेस्ट देता हो लेकिन उनको कड़वा ही महसूस होता होगा। एंड में तो वो कड़वाहट ही थी, उनकी जिंदगी फंसी हुई थी, वो कड़वाहट का जिंदगी जी रहे थे। ये गॉड ने उनको स्वीट खाना दिया जो उनके मुंह के लिए, उनकी आत्मा के लिए स्वीट है। और ये फर्क है मन्ना और नॉर्मल खाने में। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये खाना उनके पिता दे रहे हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उनका डायरेक्ट हेवन से खाना आ रहा है, फ्री होम डिलीवरी डायरेक्ट फ्रॉम हेवन। लेकिन वहां पर ये लोग दास थे इजिप्ट में, उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पैसा मिलता था या जो भी मिलता था, फिर वो खेत पे जाते थे, फिर वहां पे मेहनत करते थे, फिर उसका पीस करके ये लोग खाते थे और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। और यहाँ पर गॉड इनके पापा है, वो डायरेक्टली दे रहे हैं। वहां पे उनके मास्टर इजिप्शियंस थे जो उनको हंटर से मारते थे। देयर मास्टर्स वर इजिप्शियंस एंड नाउ देयर मास्टर इज गॉड डायरेक्टली एंड देयर फादर इज देयर गॉड हु इज देयर मास्टर डायरेक्टली। आमेन। मन्ना को देख करके when the Israelites saw manna they were puzzled. huh what is this? We have never seen it before. वो लोग हैरान में आ गए। इजिप्ट में तो जो खाना खाते थे, it was normal food. So I just will bring the fact that they were puzzled in a minute. And I will bring another part to you that this food was available till they did not reach the border of Cana. ये खाना उनके पास available था जब तक वो कैना के लैंड के बॉर्डर पे नहीं पहुंच गए। गॉड ने उनको 40 साल ये खिलाया। Verse 35 में लिखा है, The people of Israel ate manna 40 years till they came to a habitable land. They ate manna till they came to the border of the land of Cana. 40 वर्ष तक मन्ना खाते थे और जब तक वो कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंच गए। गॉड इज एबल टू प्रोवाइड। अगर आप किसी मिशन पे हैं, गॉड इज एबल टू प्रोवाइड टिल द end of the mission, and even if it is your life, God can provide you supernaturally. परमेश्वर हमें supernaturally खाना और जो भी हमें चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारे अंदर एनर्जी रहे, पावर रहे, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग रहे, हम मिनिस्ट्री करने पाए। इट इज supernaturally available. Amen. Now let me come back to the point where I was saying that ये लोग puzzled हैं। अरे ये क्या है? हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, पर ये क्या है? आइए हम लोग देखें जॉन चैप्टर 14 वर्स 14। आई विल रीड इट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। यदि तू मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगेगा तो मैं उसे करूंगा। इफ यू आस्क मी एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। आई जस्ट वांट टू टेल माय सेम स्टोरी अगेन। ग्रीक, ये न्यू टेस्टमेंट ग्रीक भाषा में लिखी। यहाँ पे जीसस बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे मेरे नाम में तो मैं दूंगा। लेकिन ग्रीक में लिखा है अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी रचना कर दूंगा। In the Greek, it speaks like this: if you will ask me something in my name, I will give it to you. And even if it is not there, I will create it for you. And here we are seeing the Israelites being puzzled because manna was not there before. मन्ना जैसी चीज पहले नहीं थी और सारे इजरायली अचंभे में, ये क्या है, हमने कभी ऐसी चीज नहीं देखी है। गॉड ने मन्ना को अपने लोगों के लिए क्रिएट करा क्योंकि वो नहीं था। गॉड इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर जैसे पहले हैं, आज हैं और बाद में भी रहेंगे। सेम गॉड जिन्होंने इजराइलियों के लिए प्रोवाइड करा वो आपके लिए भी प्रोवाइड करेंगे। यू हैव टू बिलीव। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए और गॉड के सामने आइए। कुछ हद तक गॉड आपकी लिमिटेशन समझते हैं और खासतौर से मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो अगुए खुदा ने आपको दिए हैं उनको छोटा मत समझिए, उन्हें तुच्छ मत समझिए, क्योंकि ये गॉड की प्लानिंग है। इस वक्त कई दफा लोग कहते हैं आई डोंट लाइक माई पेरेंट्स, मुझे मेरे मम्मी पापा बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत खराब है। लेकिन हो सकता है वो खराब हो, आई नो, हो सकता है वो खराब हो, बट गॉड ने उन्हीं को चुना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने माता पिता से ही सीख सकते हैं। कुछ लोग अपने बॉसेस से नफरत करते हैं और वो कोशिश करें उनको इस नौकरी से वो चले जाएं, कहीं और चले जाए। सम पीपल हेट देयर बॉसेस, हेट देयर फादर एंड मदर, एंड दे वांट टू शिफ्ट, लीव देयर फादर मदर, एंड दे वांट टू forget their bosses and leave this job and go somewhere else. But
God has a lesson that you will learn from your parents only. परमेश्वर के पास एक संदेश है जो आप अपने इस बॉस से सीख पाएंगे. परमेश्वर के पास एक संदेश है जो आप अपने पास्टर से ही सीख पाएंगे. एंड आप सारी दुनिया में जाएंगे and you will abandon and not listen to what God's person has to say, you will find yourself very far away from God. अगर आपके पास समय नहीं है परमेश्वर के दास को सुनने के लिए, तो आप अपने आप को बहुत दूर पाएंगे. God ने मोसेस को चुना था. God chose Moses and Aaron. They had to do a certain ministry that only they could do. And these people are saying evil things against them. They are saying bad things about them. And they are upsetting God and testing God. वो बार बार बुरा बोल रहे हैं गॉड के लोगों के. डोंट डू दैट. आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी. डोंट डू इट. डोंट कंप्लेन. जो भी सिंपल सा संदेश गॉड ने आपके लिए रखा है, आपके बॉस के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, उसे सुनिए, समझिए और ध्यान दीजिए. आपकी उन्नति उसी में है. अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए बगैर कंप्लेन करे, और परमेश्वर आपको वो देंगे, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है. आपके लिए रोटी जरूरी है, आपके लिए मन्ना जरूरी है. आपको पजल होगा, ये कहां से आ गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ. बट गॉड विल डू इट फॉर यू बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू इट फॉर यू. आमेन. सो आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं खत्म करती हूँ. हम लोग एक गाना सुनेंगे. मैं जहाँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ. मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में.
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप वो हमें भेजिए। हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप उन्हें मुझे अभी से भेज दीजिए, अभी चैट पे भेज दीजिए। We'll just compile them and people will start to pray. You send your request to us. और इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ। I thank you for joining us today. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ सीखा कि प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है। And I just want you to have a takeaway today. The fact that हमारे परमेश्वर हमें जवाब देते हैं। हमारा काम है उनसे प्रेयर करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम टेंशन करें, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। We have to depend on God and God will create it for you. वो आपके लिए उसकी रचना कर देंगे अगर वो चीज नहीं है तो। हिम्मत रखिए और प्रार्थना करते रहिए, हर चीज के लिए प्रार्थना करते रहिए। Keep praying.